Yes, sir. So let's go to our yesterday's article. As you know, since yesterday we were discussing about the second chapter of this particular paper number 1, that is elasticity. Elasticity is nothing but it is the property of the body by virtue of which body retain its original shape and size after the removal of external force. It is called as elastic body. Now in the elasticity, when we are applying the force, that force which deform the body, that force is called as stress, or you may also call this as deforming body. Getting please? That means, in short, if I give the definition of the stress, that it is the quantity that is proportional to the force causing the deformation, isn't it? That means stress is the external force acting on an object per unit cross-sectional area. That means in the example of rubber, when you are applying the force to the rubber from the lower end, that means you are giving the force from the external side. That means this is the external force. That is the deforming force. Why it is calling it the deforming force? Because due to this force, the body get deformed. That means body changes its original dimension. And due to this stress is also called as the external force. This stress is sometimes also called as the deforming force. And in elasticity, the main word or the main terminology used for this force, it is called as the stress, isn't it? And stress is defined as the quantity that is proportional to the force causing a deformation. Now, due to the application of this stress, due to the application of this external force, what happen? Changes happen. Sometimes length changes, sometimes volume changes, sometimes shape changes, and therefore this change in shape, or sometimes this change in dimension, this change in dimension is called as what? It is called as what? Strain. It is called as वो तो करती थी मैं, क्यों हो रहा नहीं है? अरे अब भी मैंने तेरे So now, after having seen the definition of stress and strain, the next article that we are going to see here, that there are the now elastic constant that we are going to say. Constant of proportionality depends on the. Now this is the one thing, that strain is a measure of degree of deformation. यानी कि जो deformation हुआ है, change in length upon original length, change in volume upon original volume, change in shape upon original shape. Now that means this is the degree of deformation, and it is found that for sufficiently small stress, strain is directly proportional to strain. This is the Hooke's law. Actually, we will see in the course of time. Can you understand the last line which I have altered here? For small stress, strain is proportional to stress. Anybody of you can tell me, have you understand that what is mean by this one? क्या मतलब है इसका? I will explain. Don't worry. For example, let us consider that this is the rubber. This is the rubber. Now it is elastic. Now I make some force here. मैंने थोड़ी कुव्वत लगाई इसके ऊपर. क्या हुआ जी? बोलते रहिए मुझे प्लीज अनम्यूट करके कोई एक. देखिए पहले इतनी उसकी हाइट, इतनी इसकी लेंथ थी, ठीक है, मिसाल के तौर पर 4 सेंटीमीटर. मैंने कुव्वत लगाया, हल्का सा खींचा, क्या हुआ? अनम्यूट करके बोलते रहिए. लेंथ बढ़ गई. लेंथ बढ़ी. मैंने जरा और ज्यादा जोर से खींचा, पहले कितनी लेंथ बढ़ेंगी कि ज्यादा बढ़ेंगी? ज्यादा बढ़ेंगे. यानी कि आप क्या देख रहे हैं? मैं जो खींच रहा उसको आप क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस. और जो लेंथ बढ़ रही है उसको क्या बोल रहे हैं आप? स्ट्रेन. यानी कि यहां से आप क्या नतीजा कर रहे हैं कि अगर मेरी लगाई हुई कुव्वत जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेंगी. बराबर है? आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट प्लीज? Yes. तो क्या कैन यू मेक दिस स्टेटमेंट दैट within the elastic limit or for the small stress, strain is directly proportional to stress? Are you agree with my statement?
यानी कि जैसे जैसे कुव्वत लगाई हुई बढ़ेगी वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगी। ये चीज पर आप एग्री है क्या? प्रैक्टिकली बात तुम्हारे समझ में आ रही क्या? अनम्यूट कर दिए सब और बोलिए यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. That means within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Am I correct? Now you can see that how I can write this one. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या आप? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को इस तरह से मेरे लिए मुमकिन है कि ऐसा लिखना? कैन आई राइट लाइक दिस? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा लिख सकते हैं क्या मैथमेटिकली? एक कोई अनम्यूट करके बोलते रहिए। Yes, sir. ये क्या है? ये काय की साइन है? ये इट इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन। एम आई करेक्ट? कैन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन बाय इक्वालिटी साइन? मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी Yes, sir. और इक्वालिटी करने की क्या करना पड़ेगा? देखो, स्ट्रेस इक्वल टू बराबर है ए कांस्टेंट, बराबर है क्या, इनटू स्ट्रेन, बराबर है। इज इट करेक्ट? व्हाट इज दिस के? Constant. Proportionality constant. It is the proportionality constant, and this proportionality constant here called as constant of elasticity, or you may call as modulus of elasticity. यही कांस्टेंट के जो कि हकीकत में प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, जो मैथमेटिक्स के रूप से या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट here this constant of proportionality, it is termed as modulus of elasticity. It is termed as modulus of what? Elasticity. Have you understand? Yes. Yes, sir. That means elastic modulus is therefore ratio of to the stress to the strain. Can I write K is equals to stress upon strain? Yes, sir. So that is the elastic modulus can be defined as ratio of stress to strain. Ratio of stress to strain. Strain. That means in a very real sense, it is a comparison of what is done to a solid object, that is force applied, and how the object respond, that is deformed to the some extent. यानी कि ये क्या है? हकीकत में what is modulus है? It is a real sense which compares that how much force you have applied to the body, and due to that force which type of change has been taken place. यानी कि तुम कितनी कुव्वत लगा रहे, कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कितना हुआ, इसका जो लबोलेजा है, इसका जो आउटकम है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द इलास्टिसिटी। बराबर है क्या? इलास्टिक मॉडुलस। आर यू एग्री? कैन यू अंडरस्टैंड प्लीज? Yes, sir. दैट इज द इलास्टिक मॉडुलस। नाउ how many stress and strain are there? Yesterday we have seen. How many stress and strain are there? 3. 3. Strain. 3 stress and 3 strain. What is modulus? Ratio of stress to strain. Strain. Am I correct? जब stress 3 किस्म के, strain 3 किस्म के, तो modulus भी कितने किस्म के होना जी फिर? प्लीज। 3 किस्म के होना, क्योंकि मॉडुलस आर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नाउ व्हेन द स्ट्रेस इज टेंसाइल, strain is tensile, then ratio of tensile stress to the tensile strain is 1 modulus, and that modulus is called as Young's modulus. Have you understand? समझ में आ रही बात आपके? प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग प्लीज? Young's modulus is the ratio of tensile stress to the tensile strain. Bulk modulus is the ratio of bulk stress to the bulk strain. Isn't it? Are you agree with my statement? And Yes, sir. modulus या modulus of rigidity, shearing modulus भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसको modulus of rigidity भी बोलते हैं,
इसको उमूमन ईटा से डिनोट करते हैं। ये कैसे डिनोट करते हैं? यंग्स मॉडुलस मालूम है आपको? एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी कैसे डिनोट करते हैं यंग्स मॉडुलस? इट इज डिनोटेड Eta. कैपिटल Y. Bulk modulus it is denoted by the symbol capital K. And this modulus, shear modulus, इसको दूसरा भी नाम है modulus of rigidity. It is denoted by the symbol. What is this? Eta. 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 Yes. Eta. Yes, it is called as eta, modulus of rigidity. It is the ratio of shearing stress to the shearing strain. Modulus of rigidity is also termed as shear modulus. It is also termed as shear modulus. क्यों? It is the ratio of shearing stress to the shearing strain. Have you got please? इतना समझ में आया बेटा आप लोगों के? Yes, sir. Yes. Let's go to the next. Yes. यंग्स मॉडुलस, अगर आप इसको यंग्स मॉडुलस को समझना चाहें तो लेट अस कंसीडर दैट देयर इज ए क्रॉस सेक्शनल लॉन्ग बार ऑफ एरिया ए. द इनिशियल लेंथ इज Li. ये एक बार है, समझो एक रॉड है जिसको आम अल्फाज में अपन सलाख या गज बोलते हैं बहुत ही रफ लैंग्वेज में, लेकिन हमारे लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं. इजंट इट? लेंथ इज Li. इट इज क्लेम्ड एट वन एंड किसको अपन ने पैक कर दिए. When the external force is applied to the other end perpendicular to the cross-sectional internal force in the bar, resists the distortion, stretching takes place, isn't it? But the bar attains an equilibrium in which the length LF is greater than Li. यानी कि पहले लेंथ इतनी थी, ये Li इतनी लेंथ थी, वजन इधर से खींचे तो क्या होगा जी? इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? कितनी हुई? LF हुई, यानी कि फाइनल लेंथ. तो फाइनल लेंथ बड़ी रहेंगी कि इनिशियल लेंथ बड़ी रहेंगी? Final length. बड़ी रहेंगी. That means which the length LF is greater than Li, in which the external force is exactly balanced by the internal force, isn't it? That means it is due to the equilibrium. And in such situation bar is said to be stress. जब फोर्स लगी भी रहेंगी और लेंथ बड़ी भी रहेंगी, उस हालत में उस बार को उस सलाख को अपन क्या बोलेंगे कि सलाख कैसी है, बार कैसा है? स्ट्रेस्ड है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगी हुई है. And we define the tensile stress to the ratio of magnitude of the external force F to the cross-sectional area. That is tensile stress is equals to Y is equals to tensile stress upon tensile strain. स्ट्रेस का क्या फार्मूला है? फोर्स अपॉन एरिया. लिखा है कि फार्मूला बराबर दिख रहा है आपको? स्ट्रेन का क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बराबर है. चेंज इन लेंथ इज L, ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट? पैसा Li. Mistira? Li. Therefore, can I write Y is equals to F upon A divided by L, delta L upon delta Li? Isn't it? What is this? Yes. Like a formula here. Yes. This is the required formula to determine the Young's modulus. Have you understand? Now, elastic limit. वैसे जो है bulk modulus और वैसे जो है तो sharing modulus आएगा. Do you know what is the term elastic limit? Can you understand? Elastic limit मालूम आपको? In Urdu you are calling as हदे लचक. क्या मतलब जी? I will explain once again. Let us consider that this is the rubber. Can you see the rubber please? This is the rubber. Elastic है ना ये? Please tell me yes or no. Can you see me? Yes, sir. Yes, Now, sir. on this rubber I have stretched like this. थोड़ी सी कुव्वत लगाए, क्या होगा? बोलते रहिए. लेंथ बढ़ेगी. लेंथ बढ़ेंगे सर. ठीक है. मैंने जब हल्की सी कुव्वत लगाया तो 2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी. जरा और ज्यादा जोर से खींचा, क्या होगा? और लेंथ बढ़ेंगे. और ज्यादा जोर से खींचा और इंक्रीज टूट जाएगा. लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर से खींचा तो क्या होगा? फिर टूट जाएगा. क्या बात समझ में आई कि पहले 2 ग्राम वजन लगाया, लेंथ 2 सेंटीमीटर से बड़ी, 2 ग्राम वजन हटा दिया, रबर वापस चले गए अपने ओरिजिनल लेंथ को. बराबर है? असद खान, फैजान और आप प्लीज. सेकंड टाइम 4 ग्राम का वजन लगाया, मतलब मिसाल के तौर पर 4 ग्राम से खींचा, लेंथ 4 सेंटीमीटर बड़ी मिसाल के तौर पर, वजन हटाया, दोबारा लेंथ वापस चले गए. मतलब एक हद तक क्या होते रहा
2 ग्राम 4 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम तक इस रबर के अंदर इलास्टिसिटी बाकी रही है कि नहीं? यस सर। बहुत ही गुस्सा आया, उठा के 2 किलो का वजन लगा दिया, टूट गया था। टूट गया। मतलब क्या देखे आपने कि एक हद तक बॉडी के अंदर क्या बरकरार थी? इलास्टिसिटी बरकरार थी। वो हद बोले तो कौन जी? That capacity, that limit is what? 2 grams, 4 grams, 8 grams, 1 किलो उसकी, यानी कि 99 ग्राम जो है तो उसकी क्या थी? हद थी, लिमिट थी। 99 ग्राम जो वजन लगा दिए, उसके बाद उन्हें क्या हो गया? इलास्टिसिटी खो गई। बॉडी पर डिफॉल्ट परमानेंटली डज नॉट रिटर्न बैक। अब तुम जो है टूटे बाद उसको बोलेगे अब जाओ ओरिजिनल लेंथ पे, जाता क्या उन्हें? अब नहीं जाता। नो सर। तो फिर क्या मतलब हुआ जी? 99 ग्राम क्या थी वो इलास्टिक बॉडी की? लिमिट थी। अब ये अल्फाज को मैं जरा अच्छे अल्फाज में ऐसा बोलूं क्या? इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, की तारीफ बयान करता हूँ, डेफिनेशन देता हूँ। ऐसी डेफिनेशन दी जा सकती क्या? इलास्टिक लिमिट ऑफ ए सब्सटेंस और इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस, maximum stress 99 gram, maximum stress that can be applied to the body before it become permanently deformed। इससे पहले कि वो कबिल तौर पर डिफॉर्म हो, लगाई जाने वाली वो मैक्सिमम कुव्वत उसकी क्या कहलाएंगी? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। 99 के बाद तुमने लगाए तो बॉडी यहाँ पे क्या हो गई थी? परमानेंटली डिफॉर्म। तो शॉर्ट में अगर आपको बोले कि इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन बोलो तो कैसी बोलेंगे आप? इलास्टिक लिमिट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड टू द बॉडी बिफोर व्हिच बॉडी गोज विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात आपके? यस सर। इफ इट इज, अब अगर समझो तुमने उस लिमिट के ऊपर कुव्वत लगा दी, if the force applied, if the stress applied to the body is increases beyond the elastic limit, क्या होता? Body get deformed permanently. Body does not return back to the original dimension even though if we remove the external force। तुमने पहले गुस्से से 1 किलो का वजन लगाए, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, अब रोते बैठे कि भाई बॉडी अब ओरिजिनल लेंथ पे वापस जाना, जाती क्या? नहीं जाती। नहीं सर। That means if we exceed the elastic limit of a substance by applying the sufficiently large stress, it will not return back to the original dimension। जो अल्फाज में अभी बोले, जो अल्फाज या जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए, इसको अगर ग्राफ की मदद से अगर बताना चाहे तो ग्राफ will be of like this। On x axis that is strain and on the y axis that is stress। ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं कि जब तक स्ट्रेस कम थी, स्ट्रेन बढ़ रही थी, वापस हो रही थी, मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ आ गया? कितनी स्ट्रेस पे? 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो अभी मैंने अल्फाज में बोला, जो थियोरेटिकल बोला, उसको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का इलास्टिक बता सकते। लिहाजा इलास्टिक जब ये 400 पे टूट गया तो इलास्टिक लिमिट क्या हो गई? 399। थोड़ा उसके नीचे इलास्टिक लिमिट थी उसकी, उसके बाद इलास्टिक लिमिट उसकी खत्म हो गई, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। समझ में आई क्या डेफिनेशन आपको इलास्टिक लिमिट की? यस सर। यस सर। So initially the stress is occur in a straight line. As the stress is increases, however the curve is no longer straight line। ये कर्व जो है तो स्ट्रेट लाइन था क्या जी? कहाँ तक स्ट्रेट लाइन था वो? खाली यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें टर्न हो गया, कांस्टेंट रहा और बाद में टूट गए। सर होगा। यस, तो वही बात बताया कि इनिशियली द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों बोले कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है, तो ये ग्राफ को, ये कर्व को, ये तरसीम को क्या नाम से पुकारा जाता? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट। एज द स्ट्रेस इंक्रीजेस, however the curve is no longer straight line। When the stress exceeds the beyond the elastic limit, object is permanently deformed
Yes. Object is permanently distorted and it does not return to the original shape even after the stress is removed. अब अपने एक्सटर्नल फोर्स हटाए भी, 1 किलो का वजन उठा के बाजू भी रखे, अब रबर ओरिजिनल लेंथ पर वापस आने वाला नहीं। है। समझ में आ गई बात आपके? जी सर। Same thing is shown Yes, in sir. elastic Young's modulus. Same thing we are going. Shear modulus, वो ज बात। शेयर मॉडुलस, अब मेरे को यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से मेरे को शेयर मॉडुलस का डेफिनेशन बोलो भला आप। शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ. It can be given in this. Sharing stress delta x upon h, sharing stress force upon area. Therefore sharing stress, कुछ किताबों में शेयरिंग स्ट्रेस डिफाइन करने के वास्ते यस बताया हुआ है, कुछ किताबों में ईटा है, लेकिन मेजरली शेयरिंग स्ट्रेस का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिनोट करते हैं? ईटा से. तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एस. आई यू गॉट प्लीज? बल्क मॉडुलस characterizes the response of substance to uniformly causing the reduction of the pressure when the object is placed in the partial vacuum. That is, it is the change in volume upon original volume. It can also be written in this way. Yesterday I have shown you the volume stress is equal to the change in volume dV divided by the initial volume, and that's why you can write bulk modulus is equal to volume stress divided by volume strain. Therefore, we can write that V is equals to minus delta F by A divided by delta V by VI. That is, it is the ratio of volume stress to the volume strain. Example से बताया तो देखो ये क्यूब है. When the solid is uniform, दबा रहे इसको solid को. When the solid is under the uniform pressure, it undergoes the change in volume. होगा कि नहीं? ऐसा दबाए तो इसका बढ़ेगा कि कम होगा? अगर ये इलास्टिक है, अपने पास बॉल रहता देखो इलास्टिक का, ऐसा दबाए तो कम होते कि नहीं उसकी साइज? चारों तरफ से अगर एक साथ दबाए तो प्रेशर दिए, Yes sir, कम. change in value but no change in shape, and this cube is compressed by all sides by the equal force or normal force from the 6 faces. इसके जैसा दिख रहा है 6 faces. क्या कौन सा बॉडी बोलते हैं इसको? ऐसा देखे कभी असद? क्यूबिक बॉडी. Yes sir. गुड़गुड़ी का खेल रहता था, गुड़गुड़ी रहती क्या? हाँ yes sir. हाँ वैसे लूडो. चारों तरफ 6 के 6 डायमेंशन से अगर आपने उसको एक साथ दबाए तो उसका क्या होता? वॉल्यूम कम होती. गेटिंग फैशन. This is the same thing prescribed concentrate जो बताया हमने आपको. Concrete is normally very brittle when it is cast in thin section. अपने घर में जो लोड बेरिंग करे थे कि लोड बेरिंग डालते थे कंक्रीट के, उसके ऊपर भी इस तरह से क्रैक देके जो है तो कंक्रीट के शीट डालते वजन के वास्ते, ऐसा करते थे. It is the same thing. Hooke's law, the last article. Can you tell Hooke's law? थोड़ी देर पहले हमने क्या देखे कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते स्ट्रेन बढ़ती है कि नहीं? Yes sir. 2 ग्राम लगाए 2 बढ़ा, 4 लगाए 4 बढ़ा, फिर वापस आ गया. कब तक ऐसा होता बोला मैंने? कब तक जो है तो लिमिट तक के साथ बढ़ रही थी. कब तक स्ट्रेन स्ट्रेस के साथ? कब तक 2 ग्राम लगाए तो 2 से बढ़ रहा था, 4 ग्राम लगाए तो 4 बढ़ रहा था, 6 ग्राम लगाए तो 6 99 तक. 99 तक ऐसा, यानी कि एक हद तक. उसके बाद क्या हो जा रहा था? परमानेंटली डिफॉर्म. ये कब तक हो रहा था? ये जो 99 है इसको क्या बोले जी अपन? लिमिट बोले. तो क्या मैं इसको ये इलास्टिक लिमिट बोले तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बोल सकते हैं? प्लीज टेल मी यस और नो. प्लीज टेल मी यस और नो. यस सर. बोलिए बोला उसको अल्फाज में, बोलिए ना अल्फाज में. विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बराबर है? सही बोला मैंने? यस सर. विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Stress. This statement is nothing but it is called as Hooke's law. Hooke's साइंटिस्ट का नाम है. उसने इलास्टिसिटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. मैं तो एक बता रहा हूँ रबर का.
लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे किस्म की बॉडी ली, अलग अलग वजन लगाए, सबकी इलास्टिक लिमिट एक जैसी रहेंगी क्या जी? अगर आपको नहीं। आर्टिकल नो सर, सबकी एक जैसी रहेंगी? No. नहीं नहीं, सर। नहीं भाई। रबर में अगर हम बात करें तो ये जो मास के अंदर का रबर है इसकी इलास्टिक लिमिट अलग, साइकिल का जो Yes, ट्यूब sir. आता है उसके अंदर जो रबर है उसकी लिए इलास्टिक लिमिट अलग, छोटे छोटे जो रबर आते जो अपन लगाते किसी चीज को उनकी इलास्टिक लिमिट अलग, तो हर अलग रहेगी। Am I correct? Yes, sir. And within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is the constant of proportionality is the elastic modulus. And this statement is nothing but it is called as Hooke's law. कुछ क्या नाम से पुकारने का? Hooke's law. Hooke's law. कैसे लिखिए मैथमेटिकली? Stress upon strain is equal to elastic limit. That is called as Hooke's law. इसको अगर डायग्राम की मदद से बताने का तो अब भी किस डायग्राम प्लॉट बिटवीन strain is called as strain diagram. It is clear from the graph that Hooke's law holds good. ये Hooke's law कहाँ तक सही रहता है जी? खाली Straight line proportion. यस बोलिए बोलिए प्लीज। जब तक लाइन स्ट्रेट है तो हाँ ये तो हो गई ग्राफ से बात। अपने स्टेटमेंट क्या दी हुक्स लॉ की कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहां तक सही रहता कि स्ट्रेस कर्व हो तक, लिमिट तक? यस सर। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जब तक तुम 99 तक पहुंचे नहीं थे जब तक ये सही था कि जैसे जैसे वजन बढ़ा रहे थे वैसे वैसे लेंथ बढ़ रही थी, लेकिन तुम अब आगे चले गए तो हुक्स लॉ ओबे होगा क्या? नहीं। नहीं सर, नो। तो दैट मींस क्या मैं ऐसा बोलूं क्या हुक्स लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द कर्व, या दूसरे अल्फाज में ऐसा बोलूं क्या हुक्स लॉ होल्ड्स गुड विद इन द इलास्टिक लिमिट? यस सर, ये सही। यस सर। Within the elastic limit. Have you understand what I have told since so far? अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आया आपके? जी सर। तो लिहाजा स्ट्रेस 3 किस्म के, तो मॉडुलस भी कितने किस्म के? 3 किस्म के। तो शॉर्ट में अगर मैं एक बार रिव्यू लूं, इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस डिनोटेड बाय दिस कैपिटल Y डेफिनेशन टेंसाइल स्ट्रेन, नेचर ऑफ स्ट्रेन, चेंज इन शेप एंड साइज। बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय B, और शेयर मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय यस और ईटा। हैव यू गॉट अप्रोक्सीमेट? अभी थोड़ी देर पहले बोले कि सबका मॉडुलस एक जैसा, सबके अंदर एक ही मॉडुलस रहेगा क्या? सबके अंदर एक मॉडुलस रहेगा? कुछ बॉडी जब लेंथ बढ़ेगी तो यंग मॉडुलस रहेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा उसका बल्क मॉडुलस रहेगा, और जब शेप बदलेगा उसका शेयरिंग मॉडुलस रहेगा। और हर मटेरियल की मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग रहेंगी। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है तो उसका यंग्स मॉडुलस इतना, बल्क मॉडुलस इतना, शेयरिंग मॉडुलस इतना। ब्रास का है ये मालूम ना, ये मटेरियल है ब्रास, कॉपर, क्राउन ग्लास। सुनेंगे क्राउन ग्लास कभी सुने? नो सर। क्राउन ग्लास चश्मे की दुकान पे सुनेंगे, ग्लास की किस्म है क्राउन। यस सर। लीड, यानी कि हर मटेरियल का यंग, बल्क और शेयरिंग मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग रहेगी, isn't it? So up till now it is sufficient. If you are having any question please ask me. If you are having any question please ask me. We shall stop here today teaching. If you are having any question please tell me. अब यहाँ हम क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करते हैं।